हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्माटा। एंड इन फाइलम इकाइनोडर्माटा फर्स्ट हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, एंड देन वी विल मूव टू सम complex characteristics. Okay, so here I have noted down few general characteristics of phylum Echinodermata, as you can see in the board. Okay, I have been listening from few students that I make you write from the board. I mean, I'm talking about the notes. You make the notes directly from the board. So board में handwriting थोड़ा छोटा छोटा है, दिखाई नहीं देता है. So उसके लिए technical solution यही है कि तुम लोग full screen में वीडियो को व्यू करो. And then whenever you are going to make notes, you just pause it. If you are able to see it, it's fine. If you are not, then take a screenshot, zoom it, and then you write the notes from there. Okay, that is another technique to do that. Okay, so phylum Echinodermata. Echinodermata literally means prickly skin or spiny skinned animal. Okay, so you can also call Echinodermata as prickly skin or spiny skinned animal. Okay, so from where this word Echinodermata came? It came from a German language where Echeinos means spiny and Derma means skin. Hence, spiny skin, prickly spiny skin. Okay. 6,000 living species are there, whereas 20,000 extinct species are also been recorded. No distinct head or brain is present. Okay, so they do not have a proper cephalization present. Okay, they do not have a distinct head or brain. That means they lack, you can write here, they lack cephalization. Okay, tube within tube kind of body plan with deuterostomic evolutionary line. ये सब हम लोगों ने बेसिस में ऑलरेडी पढ़ लिया है. एंटेरोसिलोम पढ़ लिया है. Okay, so they have an endoskeleton. They do not have exoskeleton. They have endoskeleton, and their endoskeleton is made up of what? Some calcareous, that means calcium made plates. Okay, so they have an endoskeleton, and their endoskeleton is made up of several small plates or several small pieces of bone, you can say. And those pieces of bone, those small plates are nothing but what? They are calcareous plates. That means they are made up of calcium. And their origin, who makes this endoskeleton? Mesoderm. Even in our body, who makes the endoskeleton? Mesoderm. Okay, so mesodermal endoskeleton इसलिए लिखा है क्योंकि मेसोडर्म से बना है, क्योंकि ये एनिमल ट्रिप्लोप्लास्टिक है. मेसोडर्म तो इसमें प्रेजेंट होगा, तो मेसोडर्म ने ये एंडोस्केलेटन बनाया है, which is made up of several small plates called as calcareous ossicle or calcareous plates. They have an unsegmented body. No segmentation will be seen. Exclusively marine. Okay, bottom dwellers. They live completely in marine water, no terrestrial form, no freshwater form, and they are bottom dwellers. That means they will live at the bottom of the sea. Exclusively free living forms. That means no parasitic forms are found. They are free living. They will manage their food on their own. Organ system level of organization. These things, so you know, these are general characters that we have already discussed in the basis of classification. Now we will move to little bit of unique or complex characters. Make a note of this. So these are your next characteristics that we need to discuss. First we are starting with body symmetry. So in body symmetry we can see exactly the same thing that happened in mollusca. That means the larva has what type of symmetry? Bilateral symmetry. That means इन लोगों का जो development होगा indirect. लेकिन development indirect में लार्वा का नाम क्या होगा, ये मैं अभी ये रब करके जो नेक्स्ट लिखूंगा उसमें मैं लिखने वाला हूँ. ठीक है, तो लार्वा है और लार्वा का बॉडी सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री. लेकिन जब लार्वा एडल्ट बनता है तो बिकॉज इकाइनोडर्माटा इज नोन फॉर व्हाट? स्टारफिश मोस्टली, इज नॉट इट. हेंस एडल्ट में हो जाएगा पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. ठीक है, दिस इज पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. दिस इज वन स्टारफिश. सो व्हाट इज पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री? Their body parts are arranged along 5 axes. You can see it has 5 arms. So hence the body is what? Projected in 5 axes. So hence अगर मैं इसका आउटलाइन बनाऊं तो एक गोल आउटलाइन बनेगा. ऐसे ऐसे करके मैं अगर इसका आउटलाइन बनाऊं तो एक गोल आउटलाइन बनेगा. तो गोल ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिमेट्री इज ऑलवेज रेडियल सिमेट्री. एंड बिकॉज इसका बॉडी 5 एक्सिस में प्रोजेक्टेड है इसलिए पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. ओके, तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस क्या हो रहा है? रेट्रोग्रेसिव, बाइलेटरल से रेडियल में जा रहे हैं, व्हिच इज अ रिड्यूस्ड सिमेट्री. ओके, सो दिस इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, नॉट
प्रोग्रेसिव। ओके, बॉडी शेप वेरीज फ्रॉम स्टार लाइक, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्टार लाइक है, ऐसा है। कौन? एग्जाम्पल स्टारफिश। टू ग्लोब्यूलर और ग्लोब लाइक, आई होप यू नो द शेप ऑफ अ ग्लोब, है ना। तो उस तरीके का भी किसी किसी का बॉडी का शेप होता है, जैसे कि किसका, सी आर्किन बोल के एक ऑर्गेनिज्म है उसका, ठीक है। सिलिंड्रिकल भी होता है किसी किसी का, सी कुकुम्बर इज द एग्जांपल। ओके, सो सी कुकुम्बर, सी आर्किन, स्टारफिश, दीज आर ऑल व्हाट, इकाइनोडर्म्स विथ वेरिंग बॉडी शेप, with different kind of body shape. Okay, so in case of starfish it is pentamerous radial symmetry, but in case of sea arkin and sea cucumber it will be only radial symmetry. That means larva will have bilateral symmetry, but the adult sea arkin, adult sea cucumber will have only radial symmetry. If it is starfish, then it will be pentamerous radial symmetry. Okay, digestive system complete extracellular. Reproductive system usually dioecious, sexual reproduction. You know only all these things. Usually external fertilization. Okay, ex situ. That means the gametes will be released in the water and the fertilization will take place in the water. Now we will move to some other characteristics including this development indirect. इसका लार्वा का नाम क्या है, ठीक है, ये जानना पड़ेगा अलग से, ठीक है, तो इसका नोट बना लो. So these are the next set of characters. Okay, so starfish shows a special phenomenon which is called as what? Which is called as autotomy. What is autotomy? Autotomy is something which we have already seen in our normal life, is not it? How? Suppose if you try to touch a lizard, what does a lizard do? It breaks off its tail and the tail will keep on doing like this, and with the main body the lizard will run away. So this is some kind of, you can say, technique of defense for some lower animals. Okay, and that kind of technique, suppose a lizard is chased by a snake, the lizard will, what the lizard will do, it will break off its tail and the tail will keep on dancing. The snake will think that the tail is the particular lizard, but the lizard will move away with its main body. Later it will regenerate its tail. This ability to break off a body part and then again building it, or you can say regenerating it, this phenomenon is called as what? Autotomy. So this kind of ability is also shown by whom? Starfishes. So starfish shows autotomy, that is ability to break off a part of its body and later regenerate it. That is also shown by starfish. If a fish comes to attack a starfish, or any other animal comes to attack a starfish, starfish will break one of its arm and with the remaining 4 arms it will move away from that particular place. Later it will regenerate its arm that it has broken off when it was attacked by some other kind of animal. Okay, so that is what autotomy is all about. Okay, now as I told you, you need to remember, you need to learn some list of the larval names in Echinodermata that I have given you over here. Larva of starfish, it has got 3 names: Diplurula, Bipinaria, Brachiolaria. Larva of brittle star, Ophiura, it has got 1 name only, Ophiopluteus. Larva of Echinus, sea arkin, Echinopluteus. ठीक है. लार्वा ऑफ होलोथुरिया, सी कुकुम्बर, अभी ये सब हम लोगों ने नाम लिखा था, सी कुकुम्बर, इसका क्या है? ऑरिकुलारिया. लार्वा ऑफ एंटीडोन, फेदर स्टार सी लिली, दिस इज डोलियोलारिया. सो दीज आर ऑर्गेनिजम्स का नाम एंड उनके अकॉर्डिंगली लार्वा का नाम. तो कभी कभी मैच द कॉलम दे सकता है, कभी कभी चूज द ऑड वन आउट दे सकता है एमसीक्यू में. तो ये सब नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अच्छा, फिर एक और पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है. क्या बोला गया है? कैलकारियस ऑसिकल्स विद ओवरलाइंग स्किन गिव्स द स्पाइनी अपीयरेंस टू द इकाइनोडर्म्स. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस एनिमल इज कॉल्ड एज अ प्रिकली स्किन्ड एनिमल, बिकॉज एज वी हैव स्टडीड, इसका जो एंडोस्केलेटन है वो मेसोडर्म से बना हुआ है, एंड एंडोस्केलेटन को हम लोग कैलकारियस प्लेट या कैलकारियस ऑसिकल बोल रहे हैं, ठीक है. तो इनका जो एंडोस्केलेटन है, वो एंडोस्केलेटन देखने में कैसा है? वो एंडोस्केलेटन का एक एक प्लेट देखने में कुछ ऐसा है. This is the calcareous plate which forms the endoskeleton of the body of echinoderm, है ना. तो ये जो प्लेट है, ये एक प्लेट यहाँ पे ऐसा है, दूसरा प्लेट क्या होगा? ठीक इसके पास होगा, ऐसा ऐसे प्रेजेंट होगा, फिर एक और उस तरफ, एक और उस तरफ, ऐसे करके प्रेजेंट होगा, है ना. तो ये जो कैलकारियस प्लेट्स है, ये कैलकारियस प्लेट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एक स्किन प्रेजेंट है. ये जो मैं रेड में कर रहा हूं वो स्किन है. तो जहां पे स्पाइनी प्रोजेक्शन है वहां पे स्किन भी तो स्पाइनी प्रोजेक्टेड हो जाएगा.
इसलिए इसको क्या बोला है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल या प्रिकली स्किन्ड एनिमल। बिकॉज नीचे जो एंडोस्केलेटन है उसके ऊपर स्किन बैठेगा, तो एंडोस्केलेटन में जो स्पाइनी प्रोजेक्शन है वहां पे क्या होगा, स्किन का भी तो एक स्पाइनी प्रोजेक्शन आएगा, इसलिए इसको प्रिकली स्किन बोला गया है। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। कैलकेरियस ओसिकल्स विद ओवरलाइंग स्किन गिव्स द spiny appearance to the echinoderms. ठीक है, now the next point, between the spines a pincer like structure called pedicellariae is present to keep the surface clean, and the presence of pedicellariae you can say to be one of the exclusive character of this particular phylum. That means you won't find pedicellariae in any other phylum. Pedicellariae you can say it is not a characteristic feature, but it is an exclusive feature to this particular phylum. Okay, अच्छा, अब ये पेडिसेलरी क्या है, ये पेडिसेलरी हम लोग क्या देखेंगे, ये जो दो पोर्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं, दो स्पाइनी प्रोजेक्शन, ये दो स्पाइनी प्रोजेक्शन के बीच में हम लोग को एक ऐसा 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 एक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली ऐसा जो मैंने ड्रॉ किया है, दो स्पाइन के बीच में एक इस तरीके का, जैसे कि कोई टेबल है उसके ऊपर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर, वेट ए सेकेंड ना, ओमा वेट ए सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर पेडिसेलरी क्या है, एंड इस स्ट्रक्चर में ये जो दो मैंने ड्रॉ किया है, दीज आर टू वेल्व्स। ठीक है, दीज आर टू वेल्व्स, एंड ये जो एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है, एंड एक ऐसा है ऐसा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है 3 कैलकारियस प्लेट्स। ठीक है, ये है 3 कैलकारियस प्लेट, 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, 1 2 3 कैलकारियस प्लेट, और 3 कैलकारियस प्लेट के ऊपर इस तरीके का 2 वेल्व टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को एज ए होल हम लोग क्या बुलाते हैं, पेडिसेलरिए बुलाते हैं। ठीक है, तो पेडिसेलरिए का काम क्या है, इज प्रेजेंट टू कीप द सरफेस क्लीन, माने ये जो दो स्पाइनी प्रोजेक्शन है उसके बीच में ये पेडिसेलरिए प्रेजेंट है, तो पेडिसेलरिए का वेल्व जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, एक मोटर के जैसा ऐसे 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 करता रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, नो डस्ट विल बी एबल टू सेटल इन बिटवीन द टू स्पाइन्स। जो दो स्पाइन है उनके बीच का जो स्पेस है वहां पे कोई डस्ट सेटल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर डस्ट सेटल होने लगा तो क्या हो जाएगा, स्पाइन का जो स्पाइनी प्रोजेक्शन है वो कम होते जाएगा कि नहीं। सपोज तुम्हारे पास एक स्पाइनी प्रोजेक्शन है ऐसा, दूसरा है ऐसा, और ये जो बीच का जगह है यहाँ पे बोले डस्ट जमा हो गया, इतना बोले डस्ट जमा हो गया, या इतना बोले डेब्रिस, डस्ट और डेब्रिस बोले इतना जमा हो गया, तो इसका स्पाइनी प्रोजेक्शन कितना लंबा था। अब इतना अगर डस्ट जमा हो जाएगा तो स्पाइनी प्रोजेक्शन सिर्फ इतना रह जाएगा। तो इस स्पाइनी प्रोजेक्शन का क्या मतलब हुआ, ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से स्पाइनी प्रोजेक्शंस निकाल क्यों रहा है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सो दैट कोई आके मुझे खाने जाएगा तो मेरा स्पाइन उसमें चुभ जाएगा। अब उस स्पाइन के बीच का जो पोर्शन है वहां पे बोले डस्ट सेटल होकर स्पाइन का प्रोजेक्शन को ही खत्म कर दिया, तो स्पाइन का रहने का क्या सिग्निफिकेंस हुआ। दैट इज व्हाई दिस एनिमल हैज बिकम वेरी स्मार्ट टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू सम काइंड ऑफ advantageous evolution. ठीक है, it has done some kind of advanced kind of evolution. And what did it do? It understood the significance of its spines. It understood that the portion which is present between the spine has to be kept clean, or else there will get deposited some kind of dust and debris which is going to end up the significance of the spines. Okay, hence in between two spines it has accommodated a evolutionary advanced character, that is pedicellariae, and pedicellariae look something like this, with the valves which are continuously moving. So when these valves will be continuously moving, if any dust particle comes to settle over here, this movement is not going to allow any of the dust or debris to get settled between the two spines, hence keeping the spines very clean and well to defend this particular organism. I hope you understood this portion. Now we will move into the characteristic feature of this particular phylum, which is water vascular system or ambulacral system, and we will see that what is the significance of this system, why this system has got the
name of characteristic feature. It has to be like very much essential for this particular animal or this particular function. Water vascular system will have to hold a great significance for this particular organism in order to get such a huge status of being a characteristic feature of this particular phylum. So you make note of this. We are moving on to the characteristic feature now. तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ठीक है, इस डायग्राम को हम लोग वाटर वस्कुलर सिस्टम बुलाते हैं, जिसका ओरिजिन है मेसोडर्मल ओरिजिन। अगर तुम लोग पूछो कि ये वाटर वस्कुलर सिस्टम इसके बॉडी के कहाँ पाया जाता है, सिलोम में पाया जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सिलोम है एंटेरोसिलोम, एंड एंटेरोसिलोम मैंने पढ़ाया है, ऑल द सिलोमिक पाउचेस फ्यूजेस टू बिकम वन यूनिफॉर्म सिलोम लाइन बाय मेसोडर्म फ्रॉम ऑल द साइड। तो सिलोम जो हमारा जैसा बॉडी कैविटी है वैसा इनका भी है, और उस बॉडी कैविटी में ये सिस्टम प्रेजेंट है। ये मैंने स्टारफिश के रेफरेंस में बनाया है। अगर मैं अभी इस ऑर्गेनिज्म का मैं अगर अभी ऐसा करने लगूं, देखो स्टारफिश बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? स्टारफिश बन रहा है कि नहीं? तो ये है स्टारफिश के बॉडी का अंदर का हालत, ठीक है। अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस इज वेरी मच क्लोज टू द कैनल सिस्टम दैट वी स्टार्टेड इन स्पॉन्जेस। कैनल सिस्टम का भी काम क्या था कि बाहर से पानी को बॉडी के अंदर से होते हुए बाहर निकाल देना, बाहर से पानी को लेना, लेके बॉडी के अंदर से होते हुए डिफरेंट कैनल से होते हुए स्पोंजोसिल ऑस्कुलम आउट। वो जो सिग्निफिकेंस हम लोग को मिला था, एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस हम लोग को इसमें भी मिलेगा। इस सिस्टम का भी काम सेम है। ये सिस्टम भी क्या करता है, बाहर से पानी को खींचता है और अपने कैनल्स, अपने चैनल्स, अपने ट्यूब्स के थ्रू उस पानी को फ्लो करवाता है एंड फाइनली यहां से निकाल देता है, ठीक है। तो आउटलाइन हम लोग समझ लेते हैं पहले। ये जो दिखाई दे रहा है ये है एक पोरस प्लेट, मतलब ये एक प्लेट है जिस प्लेट में बहुत सारा पोर्स प्रेजेंट है। इस प्लेट को हम लोग क्या बुला रहे हैं? मेड्रीपोराइट पोरस प्लेट। इस प्लेट के थ्रू पानी को अंदर खींचा जाता है, ठीक है। कौन खींचने में मदद करता है मैं बाद में बोल रहा हूं, अभी फिलहाल इतना समझो कि यहां से पानी को खींचा जाता है। पानी मेड्रीपोराइट से घुसता है, घुस के इस कैनल के थ्रू आता है। ये जो कैनल है, इस कैनल का नाम क्या है? स्टोन कैनल। सो पानी मेड्रीपोराइट से घुसता है, स्टोन कैनल के थ्रू आता है और आके कहा जाता है, देखो स्टोन कैनल कहाँ जाके खुल रहा है, ये जो हमारा 5 पेंटागोनल जो एक रिंग दिखाई दे रहा है उस रिंग में जाके खुलता है। इस पेंटागोनल रिंग का नाम क्या है? इसका नाम है पेंटामेरस रिंग कैनल। सो स्टोन कैनल से पानी पेंटामेरस रिंग कैनल में आता है, ठीक है। पेंटामेरस रिंग कैनल से वो पानी, ये जो साइड साइड का जो ऐसे ऐसे करके कैनल्स मैंने ड्रॉ किया है, सिंगल लाइन से ड्रॉ किया है, लेकिन है ये एक ट्यूब। ये भी जो पेंटामेरस रिंग कैनल है वो भी एक ट्यूब है। यहाँ पे जैसे स्टोन कैनल में मैंने एक ट्यूब के जैसा बनाया है, इनमें और मैंने नहीं बनाया है, लेकिन ये पेंटामेरस रिंग कैनल भी एक ट्यूब है ये, ठीक है ना। बाकी जो भी कैनल है सब ट्यूब ट्यूब के जैसा है, मैंने वन लाइन में रिप्रेजेंट किया है। तो स्टोन कैनल का पानी आया किधर? पेंटामेरस रिंग कैनल। पेंटामेरस रिंग कैनल का पानी निकलेगा अब इससे, ये जो है इसको क्या बुला रहे हैं? रेडियल कैनल। रेडियल कैनल में पानी निकलेगा। रेडियल कैनल का पानी किसमें निकलेगा? इसमें, 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 इसमें। इन कैनल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज लेटरल कैनल, ठीक है। इस कैनल को हम लोग लेटरल कैनल बुलाते हैं। और लेटरल कैनल जाके कहाँ खुल रहा है? देखो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर में खुल रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं? ट्यूब फिट। मैंने ट्यूब फिट सिर्फ इधर ड्रॉ किया, ये ट्यूब फिट ये हर इधर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इन सब में ट्यूब फिट प्रेजेंट होगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक जगह पे ड्रॉ किया है जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू। तुम लोग जब डायग्राम करोगे तब इनमें भी अगर ट्यूब फिट लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब फिट है इसको भी मैंने थोड़ा ब्रॉड करके यहाँ पे दिखाया है। ट्यूब फिट का 3 पार्ट्स है। ऊपर का पार्ट जहां पे आके लेटरल कैनल खुलता है उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? एम्पुला। बीच का एक हिस्सा है उसको क्या बुला रहे हैं? पोडियम। एंड जो नीचे का पोर्शन है उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? साकर, ठीक है। अच्छा, अब वाटर का फ्लो पैटर्न हम लोग को मोटा मोटी समझ में आ गया। मेड्रीपोराइट, स्टोन कैनल, पेंटामेरस रिंग कैनल, रेडियल कैनल, लेटरल कैनल, ट्यूब फिट, आउट। ये है वाटर का फ्लो का पैटर्न। नाउ इस वाटर का फ्लो का मेंटेनेंस कि कब मेड्रीपोराइट से घुसाना है, कब ट्यूब फिट से निकालना है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है ये जो पेंटामेरस रिंग कैनल मैंने बनाया है उसमें देखो रेड रेड कलर का कुछ स्ट्रक्चर्स भी मैंने बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पोलियन वेसिकल। एंड ये पोलियन वेसिकल्स क्या करता है? ये पोलियन वेसिकल्स का काम क्या है? ये पोलियन वेसिकल्स रेगुलेट्स द वाटर प्रेशर, इट
regulates the water pressure and water current, ठीक है, inside water vascular system. ये है तुम्हारा पोलियन वेसिकल्स का काम. ये जो पानी का आवन जावन, पानी को कब घुसाना है कब निकालना है, इस प्रेशर मेंटेनेंस को कौन करता है? इस सिस्टम में पोलियन वेसिकल करता है. ठीक है, जब पोलियन वेसिकल खुलेगा, सक्शन की वजह से पानी खींचेगा, प्रेस करेगा तो पानी निकाल देगा, लाइक दैट. ठीक है. अच्छा, एक और स्ट्रक्चर मैंने अंदर की तरफ ड्रॉ किया है. ये सब अंदर की तरफ एक मैंने ड्रॉ किया. इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? टिटमैन्स बॉडी. और ये जो टिटमैन्स बॉडी है, टीबी, इसका काम क्या है? टिटमैन्स बॉडी क्या करता है? इट फॉर्म्स एमीबोसाइट्स. एमीबोसाइट्स क्या है? लोअर ऑर्गेनिज्म में डब्ल्यूबीसी का नाम एमीबोसाइट्स है. ठीक है, दैट मींस ये टिटमैन्स बॉडी क्या करेगा? वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर जब इस मेट्रिपोराइट के थ्रू पानी घुस के आएगा, उस पानी में कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है. ठीक है ना. और वो बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस जब पानी इसके बॉडी के अंदर के थ्रू जब मूव करेगा, तब कैनल के अंदर इंफेक्शन कॉज कर सकता है. इसलिए देखो बॉडी कितना एडवांस लेवल पे चला गया है कि बॉडी को पता है कि पानी जो अंदर आएगा वो पानी अपने साथ बैक्टीरिया वायरस लेके आएगा, लेकिन ये बैक्टीरिया वायरस मुझे इन्फेक्ट ना करे, मेरे कैनल्स को डैमेज ना करे, उसके लिए भी जुगाड़ है. क्या जुगाड़ है? कैनल के अंदर के तरफ टिटमैन्स बॉडी को बना के रखा है. टिटमैन्स बॉडी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी बनाता है. एंड डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? बॉडी में कोई भी इन्वेडर घुसे, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म घुसे, कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुसे, डब्ल्यूबीसी के पास एबिलिटी है उसको मारने का. तो जब पानी के थ्रू अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म घुस गया तो ये एमीबोसाइट्स क्या करेगा? ये टिटमैन्स बॉडी एमीबोसाइट्स बनाएगा, बना के वाटर वास्कुलर सिस्टम में छोड़ देगा. ये एमीबोसाइट उस सिस्टम में जाके कोई बैक्टीरिया वायरस अगर कुछ षड्यंत्र रच रहा है कि अंदर में इंफेक्शन करेगा, तो एमीबोसाइट्स उसको वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर ही, कैनल्स के अंदर ही मार देगा. ठीक है, तो ये है हमारा वाटर वास्कुलर सिस्टम का सिग्निफिकेंस. वाटर फ्लो पैटर्न मैंने एक बार बोला भी है. मेट्रिपोराइट, स्टोन कैनल, पेंटामेरस रिंग कैनल, रेडियल कैनल, लेटरल कैनल, ट्यूब फिट आउट. ठीक है, रेडियल कैनल, लेटरल कैनल, ट्यूब फिट आउट. तो ये है वाटर फ्लो पैटर्न. अब हम लोग समझेंगे कि ये वाटर फ्लो करने के वजह से इसके बॉडी को क्या मदद मिलता है. ठीक है ना. ये व्हाट इज वाटर वास्कुलर सिस्टम वो हमने समझा. पानी का फ्लो कैसे होता है, कौन करता है, कहां से कहां जाता है, ये हम लोगों ने समझा. अब ये करने के वजह से इसके मेन बॉडी को क्या बेनिफिट मिलता है वो अभी हम लोग समझेंगे. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम और द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम. इसका नोट बना लो. तो यहां हम लोग अभी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम. एंड एज यू कैन सी इन द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, पहला फंक्शन क्या है? लोकोमोशन. ठीक है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू जो पानी घुसता है, उस पानी को जब एक फोर्स के साथ छोड़ा जाएगा बाया ट्यूब फिट. ठीक है, तो ट्यूब फिट के थ्रू जब छोड़ा जाएगा, सपोज ये तुम्हारा ट्यूब फिट है, तुम पानी ऐसे छोड़ रहे हो तो बॉडी को उल्टा डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलेगा कि नहीं? ठीक है, जब पानी हम लोग नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो बॉडी को उल्टा थ्रस्ट मिलेगा, ऑपोजिट साइड में बॉडी मूव करेगा, है ना. तो वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन स्विमिंग. दिस इज हाउ इट स्विम्स. जब मन करेगा तब ये जो ट्यूब फिट है, ट्यूब फिट को ऐसे बेंड भी कर सकता है, ऐसे करके बेंड भी किया जा सकता है. पोडियम इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, तो पोडियम को बेंड करके ऐसे पानी छोड़ेगा तो बॉडी क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा. जिस तरफ पानी छोड़ेगा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा. ठीक है, ये जो पोडियम है, ये पोडियम को बेंड करके पैर के जैसा भी बना सकता है. तो कभी कभी ये पैर के जैसा इसको फंक्शन भी कर सकता है बेंड करके, जो इसको क्रीपिंग क्रॉलिंग करने में भी मदद करेगा. सो विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट. तो ट्यूब फिट से यहाँ से पानी छोड़ेगा तो स्विमिंग, बॉडी मूव करेगा अगेंस्ट. ठीक है, जिस तरफ पानी छोड़ रहा है उसके अगेंस्ट में थ्रस्ट मिलेगा, उधर मूव करेगा. ठीक है, पोडियम को बेंड कर सकता है. वो बेंडिंग एबिलिटी की वजह से कभी अगर वो पोडियम से पानी नहीं भी निकाले तो भी वो पोडियम की मदद से ऐसे ऐसे करके क्रीपिंग क्रॉलिंग कर सकता है. कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड. पोडियम जो है वो बेंड हो सकता है, तो यहाँ पे अगर कभी कोई फूड पार्टिकल आके स्टक किया तो पोडियम क्या करेगा? तुरंत बेंड होके पकड़ लेगा. आर्म्स भी फ्लेक्सिबल है, आर्म्स और पोडियम के थ्रू खाना मुंह में लाएगा, लाके खा लेगा. विद द हेल्प ऑफ मूविंग आर्म्स आर मूवेबल. एंड पोडियम ऑफ ट्यूब फिट ये क्या करता है? ये कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है टुवर्ड्स द माउथ. रेस्पिरेशन. ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये बॉडी के अंदर से होते हुए
ऑपरेट करता है, बॉडी के एकदम इंटीरियर से होते हुए ऑपरेट करता है। तो जब ये वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू वाटर पास होता है फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का मैक्सिमम सेल्स आर इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो ये सेल क्या करेगा, वाटर वस्कुलर सिस्टम के अंदर का जो पानी है उस पानी के साथ गैसियस एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन लेगा, CO2 दे देगा। जो पानी ट्यूब फिट के थ्रू बाहर होगा वो पानी CO2 लेके निकल जाएगा। लेकिन जो पानी मेट्रीपोराइट के थ्रू घुस रहा है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था, लेकिन जो पानी ट्यूब फिट के सकर के थ्रू निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, CO2 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाया डिफरेंट कैनल्स ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम there were many cells which were in direct contact with the tubes, with the canals of water vascular system. Hence the direct exchange took place between the cell and the water present inside the water vascular system or the canals of water vascular system. Next, number 4, excretion. Cells pores metabolic waste into the blood. Blood में डाल रहा है, ठीक है ना। Blood सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है, तो ब्लड जो है वो क्या होगा, द ब्लड विल कम इन द मेन सीलोम, उसी सीलोम के थ्रू वाटर वस्कुलर सिस्टम पास होता है। माने ब्लड विल कम इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द वाटर वस्कुलर सिस्टम, विद द कैनल्स ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो क्या होगा, सीधा वाटर वस्कुलर सिस्टम का जो वाटर है उसमें क्या हो जाएगा, एंड देन इट डिफ्यूजेस आउट डायरेक्टली इनटू द वाटर ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम और टू द सराउंडिंग वाटर। या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर भी जो वाटर है, ठीक है ना, पकड़ लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये स्टारफिश है ना, यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे इसके बॉडी के बाहर आउटलाइन में जो वाटर होगा, ठीक है ना, तो पानी के नीचे डूबा हुआ है, यहाँ पे पूरा वाटर वाटर है, तो उस वाटर में भी डायरेक्टली भी एक्सक्रीशन कर सकता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को छोड़ सकता है। तो इस ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल ऑर्गेन स्पेशल कुछ प्रेजेंट नहीं है फॉर डूइंग द एक्सक्रीशन, बिकॉज ऑफ द वाटर वस्कुलर सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ डायरेक्टली थ्रोइंग आउट द मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द सराउंडिंग वाटर। ये दो एबिलिटी होने के वजह से, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म ने अपने बॉडी के अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का डेवलप नहीं किया है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें अगर पूछा जाए है कि नहीं, नहीं है, एब्सेंट, बिकॉज सेल पोर्स मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द सिलोमिक फ्लूइड और इनटू द ब्लड। अगर ब्लड में डाला तो ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कंटेक्ट विथ होम, द वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो उसके कैनल के अंदर जो पानी है वहां पे छोड़ देता है, जो पानी सकर के थ्रू निकलेगा वो मेटाबॉलिक वेस्ट लेके निकल जाएगा। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो सिलोमिक फ्लूइड में छोड़ा जाता है, ठीक है, वो सिलोमिक फ्लूइड डायरेक्टली सिलोमिक फ्लूइड से जो सराउंडिंग वाटर है उस सराउंडिंग वाटर में भी मेटाबॉलिक वेस्ट चला जाता है, ठीक है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, जिसके वजह से इस सिस्टम को कैरेक्टरिस्टिक फीचर का दर्जा या स्टेटस मिला है, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस। तो ये है तुम लोगों का लास्ट डिस्कशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइलम, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग एक और स्पेशल नाम से बुलाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स, विल बी कॉल्ड एज हेमल और पेरीहेमल सिस्टम, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का, नो हार्ट, ठीक है, कोई हार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड बॉडी में फ्लो करता है, एक जगह से दूसरा जगह मूव करता है। तो हार्ट नहीं है तो किसी और को होना पड़ेगा टू पंप द ब्लड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो काम कौन करता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय पोलियन वेसिकल्स। जो पोलियन वेसिकल्स वाटर वस्कुलर सिस्टम में मिला, उसी तरीके का कुछ पोलियन वेसिकल ब्लड सर्कुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ डोंट कनेक्ट कि पोलियन वेसिकल जो वाटर वस्कुलर सिस्टम में मिला वही पोलियन वेसिकल ये काम कर रहा है, नहीं, उस पोलियन वेसिकल का काम अलग है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करने से उसका लेना देना है। ये पोलियन वेसिकल सर्कुलेटरी सिस्टम का अलग है, लेकिन है, और यही पोलियन वेसिकल्स है जो ब्लड का मूवमेंट को बॉडी में करवाता है, ठीक है। अच्छा, ब्लड लैक्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्यों? क्योंकि सेल क्या कर रहा है, ट्यूब फिट का पानी के साथ डायरेक्टली वाटर एक्सचेंज कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या जरूरत, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चाहिए ही नहीं, क्योंकि सेल डायरेक्टली क्लोजेस्ट कांटेक्ट में है, ट्यूब फिट का डायरेक्टली क्लोजेस्ट कांटेक्ट में है, रिंग कैनल का डायरेक्टली क्लोजेस्ट कांटेक्ट में है, स्टोन कैनल, रेडियल कैनल, ब्ला ब्ला ब्ला, तो डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। तो ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट रखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं है। तो ब्लड क्या करता है, अगर रेस्पिरेशन में मदद नहीं करता है तो ब्लड क्या करता है, कुछ तो करता होगा, इसलिए बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एलिमेंट्री कैनल से फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है, ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फूड को ट्रांसफर करेगा। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, वो तो अभी देखा, सेल ब्लड में छोड़ देता है, ब्लड ओपन सर्कुलेटरी, मतलब ब्लड जो है वो बॉडी
में पूरा घूमता रहता है, तो वो क्या होता है, इट कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द डिफरेंट कैनल्स, तो वहां पे छोड़ देता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली हम लोग ओपन टाइप देखेंगे, लेकिन किसी किसी में क्लोज टाइप भी है, जैसे पकड़ लो सी कुकुम्बर, कुछ स्पीशीज ऑफ सी कुकुम्बर, सी आर्किन, ये सब में भी कुछ स्टारफिश में भी है, उनमें भी कुछ में क्लोज है, कुछ में ओपन है। तो ओपन और क्लोज में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर क्लोज होगा तो क्लोज का जो ब्लड वेसल है वो एकदम ट्यूब फिट के एकदम पास होगा, तो दे विल डू द नेसेसरी एक्सचेंज लाइक दैट, माने मेटाबॉलिक वेस्ट को ये पकड़ लो ब्लड वेसल है, ये पकड़ लो कोई कैनल है, तो ब्लड वेसल और कैनल एकदम पैरेलली आ जाएगा, तो इसका अंदर का जो ब्लड है उससे इसके अंदर का पानी में मेटाबॉलिक वेस्ट छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ओपन है तो ब्लड डायरेक्टली क्या होगा, कैनल के कांटेक्ट में आएगा, तो ब्लड से कैनल में डायरेक्टली मेटाबॉलिक वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर डिस्कशन ऑफ इकाइनोडर्माटा। वी आर एंडिंग अप हियर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू हेमिकोडाटा एंड यूरोकोडाटा। ओके, हेमिकोडाटा एंड यूरोकोडाटा आर द टू थिंग्स दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। देखते हैं सेफालोकोडाटा भी अगर कर सकते तो साथ ही में कर लेंगे, ठीक है। तो ये आराम से नोट बना लो, डाउट बना के रखो, डाउट क्लास में पूछना अच्छे से, ठीक है। चलो बाय बाय।